blind to the evils around him. Indeed, we must get on. This is one of Shakespeare's most complex stories. King Lear. Forgive us if we leave out some of the less important bits. Let the drama commence. B. She's cold and heartless too. This is Regan, the king's second daughter, with a husband, the Duke of Cornwall. She is selfish and manipulative and matches her sister in cruelty. And her husband? Ha! Weak. This is Cordelia. She is the youngest daughter and the only daughter who truly loves him. I, the King of England, with royal decree, will unfold my purpose. I'll divide my kingdom into three, and the one who declares their love for me the most shall get the grandest share. For first, my eldest daughter, Goneril, come forth and speak your heart. Sir, I love you more than words can weigh the matter. Dearer than eyesight, space, and liberty, no less than life, as much as a child ever loved her father. What is this? Love and be silent? You will get a generous portion of my kingdom. From the vast forest to the flowing rivers, I shall carve a realm, and you will be the lady of it. And now, my second daughter, Regan, wife of Cornwall, come forth and reveal the depths of your love. In my true hearts, I find that my sister Gondrel names my very deed of love, but she comes to short. I profess to be enemy of all other joys, except my father's love. You and your husband will also get a generous portion of my kingdom. I bestow no less in breadth or in worth than which is given to your eldest sister. Unlike my sisters, I am sure that my love is stronger than my words. And now, with joy, I call my youngest daughter, Cordelia. I shall not play this game. Nothing, my lord, nothing. Nothing? Nothing shall come of nothing. Speak again. I love you, your majesty, according to my bond. No more, no less. I cannot heave my heart into my mouth. And also, why do my sisters have husbands if they say they only have love for you? So young and so unkind? So young, my lord, and true. Then let that truth be your only prize. I disown all my fatherly care and duty towards you. The sweet and beautiful will presently appear. The one is mostly here, the other found out there. This is madness, sir. Do not banish the only daughter who truly loves you. You who have been a loyal servant to me, now out of my sight. Be calm, sir. Show some respect for the king's judgment. Albany, this might work well for us. With Cordelia gone, we must share the kingdom. Fare thee well, your majesty. Princess, take care of yourself. Here are Burgundy and France, my lord. I seek your permission to let the two princes in who wish to marry your youngest daughter, Cordelia. All is in vain now. But still, call them and let them try. I am the Duke of Burgundy, and I have asked for the sweet hands of Cordelia in marriage. I am the King of France, and I do wish to marry Cordelia. You two noble gentlemen want to wed her, Cordelia? But what dowry do you seek? Your loyal majesty, I only want the third of the kingdom, as you did offer before. And you, France? Fair princess, I take you as my wife, for your honesty shines brighter than gold. You see how the king has been blinded by flattery?
I offer Cordelia my love and protection. She deserves more than this treatment, and I shall care for her as my queen. Then take her, for such we have no daughter, and I shall not gaze upon that face again. Come, noble Burgundy. Come, my queen, come with me to France, and there you shall find a home and honor, with farewell to your sisters. Your most kind sir. With the jewels of her father, with washed eyes, Cordelia leaves you. We know what you are. Take care of your father as you committed. Prescribe not us out of duty. Let us study we to get dead, who have received you at Fortunouts. The king had divided the kingdom into silent despair, half his time with the retinue of his followers with each daughter. But I go on forever. Man may come. As your old father, you should be wise. Here in my house, you keep 100 knights and squires. They are loud and disorderly and have turned this place into a den. What's this? Why this frown now? You were my eldest daughter, right? No, you were my eldest daughter. Huh. The head sparrow fed its cuckoos along. It had its head bitten by its young one. You speak too much, fool. I know. Yes, you must get rid of all these followers if you are to stay in my house. Prepare my horses. I'm ashamed to see this. My own daughter betraying me. You. I have another daughter who would tear your eyes out when she hears how you treated me. I won't stay here any longer. What shall happen now? I must warn my sister Regan. Cornwall has sent her servants to inform her sister of her father's imminent visit. Thereafter, she also went there. Hark! I heard the company arrived. How must I receive them? With caution, mistress. Your sister must speak the truth. Hail to your grace. Good morals, both of you. What brings you to us so soon, your highness? Oh, Regan, how should I tell you? Your sister betrayed me. Oh, sir, you're old. I pray that you have wronged her. Then should I ask her forgiveness? No. Regan, I confess that I'm old. But I confess, I beg you on my knees for food and shelter. Good sir, I pray do not beg. Return to my sister. Return to her? Never, Regan. My lord, calm yourself. Listen to your daughter. Go on then. Let the guilty flames cover your eyes with regret. Is this of how though you speak of me too? No, Regan. This is because of your tenderness and the bond of childhood. Do not forget that I gave half of my kingdom to you. Then, if you have a mind to stay, I must insist that you come with a handful of followers. Father, have you found my sister more accommodating? Is it true that she does not wish to entertain your followers either? What need you even have of 25 servants? Why 25? Why not 10? 10? What need you even have of one? Oh God, do you see me? A poor man in grief. Is that you? Is that you I'm here? No. You unnatural witches. You are the reason. I will have revenge on you. I'll defeat you. Do you think I'll weep? No, I'll not weep. I'll defeat you.
I'll have revenge. He used to rule the girls that obeyed his every word, and now in the storm he weeps alone. He thought that it would be wise to give away the kingdom in lies, and now in the storm he weeps alone because his daughters went and kicked him out. The end of this tragic tale is full of death. But we have brought some positivity in this story. Leo wakes up in a French camp and sees Cordelia by his side. Wake up, Father, wake up. Cordelia, forgive me. Yes, Father, I love you, and I always will love you as my father. Pardon me for what I have done. You have a foolish father. No, Father, not at all. Pay attention, as the King of France is on his way to invade England, and in the midst of his way, he finds King Lear. Don't worry, Father. Regan and Goneril will have to pay for what they have done to you. Bestow your blessings upon me, and I promise that your culprits will be slayed at your command. See you soon, Father. The King of France has defeated Goneril, Albany, Regan, and Cornwall and presents them in front of Leo and Cordelia. Father, I bring before you those who have betrayed you, awaiting your command for justice. No, I can't. My father doesn't want to take this opportunity. If so, I would like to do this. Soldiers, take them and hang them to death. Mercy, my young daughter. After all, they are your sisters, and my daughters too. How can I see them die? Forgive them. Oh, I cannot believe my ears. And you too, my sisters. My father is a man like no other. He gave you life, taught you, nurtured you, and you troubled him to the fullest. Shame, a big shame. Father, please forgive us. We are regretting for what we have done. Remember this. Life's greatest lessons are learned in hardest of times. And with that, thank you. Thank you. Vedam Clay as a soldier. Ark Palankar as a soldier. Samiksha as narrator. Harsha as Regan. Nidhi as Cordelia. Aditya as King Lear. Saksham as Cornwall. Atharva as King of France. Avnish as Duke of Albany. Tanvi as Goneril. Preetham as nobleman. Preetham as soldier. Pratiksha as a joker. Nikhil as a soldier. Advait as a narrator. Anirudh as the Duke of Burgundy.
Smita. Yes. मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे सहित आराक के घर से पार होकर एक चक्र नगरी में प्रवेश करके एक ब्राह्मण के घर में आश्रय लेते हैं। तभी दूसरे दिन दीक्षा के लिए नगर में संचार कर रहे हैं। ओम दीक्षां देहि। सुखी रहो
पुत्री। आपका भला हो। बड़े भैया, आज हमें भिक्षा में लड्डू मिले हैं। बड़ा आनंद आएगा, लेकिन हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भीम भैया छोड़ेंगे तब ना। उन्हें लड्डू अति प्रिय है। चिंता ना करो, मैं तुम दोनों के लिए भीम से थोड़े से लड्डू ले आऊंगा। चलो। माँ, हमें भिक्षा मिली है। मिक्सर वहाँ पे। पाँचों बांट कर खा लो। लेकिन बांटने का काम तो आपका है माँ। अच्छी बात है, तुम स्नान कर लो, मैं आती हूँ। अच्छा कर गया। मेरे सिंह देखो। मैंने माता, भीम भैया को पूरा लड्डू? हाँ, सारे भोजन में से आधा हिस्सा उसका ही होता है। इस लड्डू की ओर मत देखो अर्जुन, इस लड्डू के मैं हिस्से नहीं करूंगी। नकुल और सहदेव को यह लड्डू बहुत भाते हैं, मैं उन्हें ही दूंगी। यही कष्ट है मजले होने का। छोटे से अन्याय नहीं कर सकते और बड़े का अत्याचार सहना पड़ता है। अर्जुन भैया, हमारे हिस्से का लड्डू आप ले लो। रहने दो बिटवा, छोटे बहन का हिस्सा नहीं लेते और बड़े भाई से तो कुछ मिलने वाला नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोने की आवाज। चलो। ईशान आगे जाओ। एक चक्र नगरी के राजा बड़े दुर्बल होने से बकासुर उस नगरी का राजा बन बैठा है। उसे रोज एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और एक मनुष्य चाहिए था। इसलिए आज ब्राह्मण के घर की बारी है। सब उदास होकर रोते बैठे हैं। अनल, अनल, घोर अनल, आज बकासुर को भोजन देने की बारी हमारी है। घोर अनल। मैं कहती हूँ मुझे जाने दो, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होंगी। नहीं, 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 तुम कैसे जाओगी? तुम चली गई तो इस घर का क्या होगा? बच्चे भी इतने बड़े भी कहाँ हैं? फिर बेटी का विवाह भी करना है, इसलिए तुम मत जाओ, मैं चला जाऊंगा। अजी तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। नहीं, मैं जाऊंगी। ना माँ, ना तुम जाओगी ना पिताजी जाएंगे, मैं जाऊंगी। मेरे माता पिता के स्थान पर उस राक्षस का आहार मैं बनना चाहूंगी। मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए? मैंने ऐसा क्या पाप किया है? देवी, हमें तुम पर बहुत दया आती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? यह दुख तो सारे नगर का एक जैसा ही है। जिस दिन जिसकी बारी आती है उसी दिन उसके घर में ऐसा ही घोरा मच जाता है, परंतु बारी तो सबके एक दिन आनी ही है। पर क्या हमें 1 साल का अवकाश नहीं मिल सकता? गंगाधर जी, आप स्वयं ही थे उस सभा में जिसमें उस नरभक्षक राक्षस के साथ हमने यह समझौता किया था, जिसमें उस राक्षस ने यह कहा था कि 2 भैंसे, 1 गाड़ी अन्न, 10 मटकियां दूध और 1 आदमी हर रोज अगर हम उसे देते रहेंगे तो वो हर किसी गाँव वालन को कुछ नहीं करेगा। परंतु जिस दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा तभी वो गांव में आकर लहू की नदियां बहा देगा। इसीलिए हम सब लोगों ने यह समझौता किया था और यह तय किया था कि अन्न और दूध के मटके को हम सभी गांव वाले मिलकर छुटा देंगे, परंतु 1 आदमी
लेकिन प्रस्थान करे तो करे कैसे? है कोई जो इस गरीब की मदद कर सके? यह सब कुंती अपने पांचों बेटों के साथ दरवाजे के बाहर से देख रही है और इसी वक्त भीम के साथ घर के अंदर प्रवेश करती है। क्या बात है ब्राह्मण, तुम सब क्यों रो रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? क्या बिना पड़ी? अरे भाई, हुआ क्या, कुछ बताओगे? हाँ हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। बात कहे? मेरा भाग्य फूट गया, इससे कहता रहा चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यह तो यही की मिट्टी में ऐसी रम गई कि जाने का नाम ही नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया है। बुलावा आ गया? कहाँ से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो तुम्हें क्या दुख है, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अरे बहन, तुम हमारी अतिथि हो और अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब तुम ना बताओगे, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। हाँ बेटी, बताओ तो क्या बात है? अजी बता क्यों नहीं देते? ये तो परदेसी है, इन्हें क्या पता उस राक्षस की कहानी। हम लोग उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है। ओहो, बकासुर, फिर वह क्या करता है? करता क्या है? इस नगर की रक्षा करता है। राक्षस रक्षा करता है? रक्षा करता है तो तुम सब रोते क्यों हो? तो तुमसे कुछ अपराध हो गया क्या? अब जा रहा है? ना ना बहन, कुछ अपराध नहीं हुआ है। तुम पहेलियां बुझा रहे हो। ऐसा कौन राक्षस जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? देखो बेटा, मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। इस नगर का राजा बड़ा ही दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना चाहता है। उस गद्दी को दबाकर बकासुर असली राजा बन बैठा है। वह हम नगर की रक्षा करता है। फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा। हाँ बेटा, हमसे रोज एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और एक आदमी रोज लेता है। रोज? प्रतिदिन? हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब वासियों ने मिलकर बारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तभी वह यह सब सामान बेचना पड़ता है। तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले क्यों न बता दिया? सब लोग मिलकर अपनी बारी भुगते हैं, ना भुगते तो वो राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, सारे मनुष्यों को एक साथ ही खा जाए। और जो कोई अपना दूसरा आदमी बेच दे? हाँ हाँ, बेच सकता है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं जिसके पास ज्यादा धन हो। तो क्या यह आदमी बिकते भी है? हाँ बहन, बिकते हैं, पर मेरे पास धन नहीं है। अगर होता तो इन्हें आदमी खरीद लेता। बड़ी अजीब नगरी है यह आदमी बिकते हैं। मालूम होता है कि यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। लेकिन ऐसे कब तक तुम उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? ये तो कोई सोचता ही नहीं। जब जिसकी बारी आती है तभी उसके मन में ख्याल आता है। बस रो पिट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है। कब से ऐसा होता रहा है? पिछले 40 वर्षों से। तो बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सके। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पियो, और बेटी तुम रसोई में जाओ और तुम अपना काम देखो। कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। क्या क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा? हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा? मेरा यह बेटा। मेरे तो 5 बेटे हैं ना। ना ना बहन, ये तो गलत है। भोजन देने की बारी हमारी है तो हमें जाना चाहिए। ओहो, तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? तैयार? माँ, जब से उस बकासुर का नाम सुना है लग रही है। मेरे नेत्र उसे देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। वाह वाह वाह! यहाँ हम रहे, वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा? यह कभी हो सकता है? तुझसे यही आशा थी बेटा। सुना बहन, मेरे बेटे ने क्या कहा? नहीं नहीं बहन, ये कैसे हो सकता है? तुम हमें... ओहो, सुना नहीं क्या मेरे बेटे ने क्या कहा? वह बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले। राक्षस को मार डाले? बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। बुआ बुआ, आप कितनी अच्छी हो। पगली, जा रसोई में माँ की मदद कर, और भीम तू चल, कल की तैयारी कर। चलो माँ। ब्राह्मण के बदले भीम बकासुर के पास उसका भोजन लेके जाने के लिए तैयार है। इसी वक्त भीम ब्राह्मण बकासुर के किले की ओर जाता है और जाते ही इधर उधर घूमता दिखाई देता है।
Irish now. इस आदमी ने तो शोर मचा रखा है। बड़ा अजीब आदमी है। डरने के बजाय हंस रहा है। देखता हूँ कौन है वह। ला 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 ला, खाना खा, गाना गा। ए तू, कौन है तू? अरे गधे, मैं तुझसे पूछता हूँ कि तू कौन है? अरे दुष्ट, सुनता नहीं? क्या तू बकासुर का नाम नहीं सुना? बकासुर? कहाँ बकासुर? मैं हूँ बकासुर। तू बता कि मेरा भोजन कहाँ पे है? झूठा है तू, मुझे बहकाता है। तू तो भैंस जैसा है। जबान संभाल के बात कर। तू बकासुर से बात कर रहा है। मेरी भैंसें कहाँ पे है? तो तू है ही एक, मुझे समझ में। अरे दुष्ट, क्या तू ऐसे नहीं मानेगा? मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। साबुत ना चबा गया तो बकासुर न कहना। आ तो आने को क्या है? आप कुश्ती लड़ेगा? दोनों में घमासान लड़ाई हो रही है। दोनों ही बड़े वीर शूर हैं। भीम बकासुर को मारने के लिए बहुत अट्टहास कर रहा है। अभी तेरे दो टुकड़े किए देता हूँ। भीम के सिपाही इसी वक्त बकासुर के सिपाही किले से बाहर आते हैं। बकासुर मर गया? बकासुर मर गया? इतना वीर शूर बकासुर कैसे मर गया? ओ, तुम बकासुर के सिपाही हो? खबरदार, जो शरारत की रहना अंदर हो, पर गाँव वालों को तंग न करना, समझे? जी, ले अच्छा। जाओ इस लाश को उठाकर। जी जी। अरे वाह, बकासुर मर गया। चलो, ये शुभ समाचार को हम सभी गाँव वालों को बताएंगे। चलो चलो। अबे सुनते नहीं? इस लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर को सीधे सब गाँव वाले देख ले, और आदमियों को मत खाना। जी जी, नहीं। चलो, ले चलो उठाकर। देखा आपने कैसे दानवता पे मानवता की जीत और बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। यही हमारे इस नाटक बकासुर वध का संदेश है। धन्यवाद।
जिंदगी जो है नाचती तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव। प्रीत की धुन पर नाच ले बाबा, उड़ता अगर है उड़ने दे आंचल। काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए जो है अनकहे, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा है धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना दो छुपा। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। रंगरेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बनके, हाय नहीं रहना तुझा बनके। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण इस तन के, है नहीं रहना तुझा बनके। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सोते सोते रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग दे, मुझको रंग दे, सोते सोते रंग दे, मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। कागर कागर मोरी दुनिया रजतों से चुन चुन खाइयो मांस। कागर कागर मोरी दुनिया रजतों से चुन चुन खाइयो मांस। अरे जिया रे खाइयो ना तो मैं न मोह, खाइयो ना तो मैं न मोह, प्रिया क्या मिलन की आस। खाइयो ना तो मैं न मोह, खाइयो ना तो मैं न मोह, प्रिया क्या मिलन की आस। ओ नादा सैया तू है मेरा सैया, सैया तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं। आजा चंदा
जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं सैया सैया। ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए, कोई प्यार से घुंघटिया देता उठाए। अब बावरा हुआ मन, जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन। कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए सैया हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा। मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा। मैं तो तेरी This performance won the first prize in Chronos organized by St. Paul's High School, and it deserved to be the first. So audience, give a big round of applause for them.
चोरी चोरी हवा से है बंदी डोरी मेरे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंदी डोरी शर्म चोरी 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 नैनों की है बोले चोरी मेरे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंदी डोरी Most awaited 10th boys dance. इश्क दा जाम दिखा जा जो मेरा रात है आजा साथ निभा जा साथ निभा जा ओ जो मेरा रात है आजा साथ निभा जा साथ निभा जा तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक बबीता। ये बबूचा चाय पियो बिस्किट खाओ चाय पियो बिस्किट खाओ क्या बोल रहा है चाय पियो बिस्किट खाओ चाय पियो बिस्किट खाओ चाय पियो बिस्किट खाओ चाय पियो बिस्किट खाओ कौन बता रहा है चाय पीना वो गांधी जी बन गांधी जी शुरू कर दे देश के लिए अच्छा होगा प्रॉब्लम है अंदर सॉल्यूशन है फायर है तू फायर नहीं फाइंड द फायर पुष्पा 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 राज पुष्पा 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 राज पुष्पा 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 राज पुष्पा 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 राज लगता है मेरा मेरी राहों में फूलों का रास्ता है मेरा Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle. It's time, so let's see what the wiggle. For sure, please on a dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6 feet 2 in a compact, no slack. But luckily the seats go back and got an natural.
Yes, of course, Mandar. Now I request everyone to please raise as we have come to the end of the session and we are going to start with the national anthem. Light. Hello. Check. Check. Light. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा